Good morning, class. So today we'll continue with chapter number 3 only. Till now, what we have done, we have studied what is matrices, how we can do addition of matrices, subtraction of matrices, and multiplication of matrices. Till now, we have done that and some problem based on it. And exercise 3.1 and 3.2, I asked you to finish it up. And if you have any problem, you can ask me anytime. Clear? So now next is just see the properties of when we are doing any multiplication like positive integral powers of a square matrix. Let A be a square matrix. If we are considering A be a square matrix, then just see if we are having integral powers of a matrix, like we have done a question before also, like A cube. So how we can find A cube? We can do it as A square into A. Can we write this way? A square into A, isn't it? So A cube can be written as A square into A. Clear? So A to the power of, what they have written is, just see, they have written A to the power of n plus 1 can be written as A to the power of n into A. You have studied laws of exponents. The same way we have done, we used to do it in numbers. Now this is in matrices. Okay, this law of exponent is valid in matrices also. Clear? So A to the power of n plus 1 can be written as A to the power of n into A. One and the same thing. Next is A to the power of m into A to the power of n is equal to A to the power of m plus n. That means if we are having A square into A cube, you can write this as A to the power of 5. Same way, this is in matrices. If you remember in numbers also, we used to write 2 to the power 2 into 2 to the power 3. We used to write it 2 to the power of 2 plus 3, that is 5. Okay, using laws of exponents, when the base is same, the powers are added. Okay, then next is A to the power of m to the power of n is A to the power of mn. So what we will have, same way, 2 to the power of n to the power of m. If we are having in numbers, how we used to write? We used to write it as 2 to the power of n into m. Clear? So the same applies in matrices also. Clear? Now matrix polynomial. Matrix polynomial is what? Just see, if fx is equal to this, then fa is equal to, if the value of fx means what? Fx is any number, any function whose value is a to the power of 0, x to the power of n. So fa means, now instead of x we are having what? If this you have studied many times, what is a polynomial? This is what? This is just a polynomial function. I know polynomial function you all have studied. Take an example, fx is equal to x cube plus 3x square plus x plus 1. So here is a0, the value of a0 here is 1, the value of a1 here is 3, the value of a2 here is again 1, and a4 is, the last value a4 is 1 again. Clear? So what is a1, a2, a3, a4? These are the coefficients of x, the coefficients of x here. Clear? The coefficients of x are called a1, a2, a3, a4. When we are talking about what? When we are talking about a polynomial. Now, instead of a polynomial, we are studying what? Polynomial in variable x. Now we are studying what? Matrices. So fa, instead of x, we will just apply a. So fa will be equal to what? A0 a to the power of n, a1 a to the power of n minus 2, same way an I to the power of n. Now just see what it is. Just before one question we have done, if you remember, I told you to find the value of a cube minus 3a square or whatever. I don't remember the exact question. Let it be like a cube minus 3a square plus minus 4i. Find the value of this. If I ask you find the value of this or prove that this is equal to 0, and if any question can be given. Now this is what? A polynomial. This is a polynomial in A. So we call it as f of A. Clear? F of A is equal to a cube minus 3a square minus 4ai, and I asked you to find the value of this when A is equal to, when I have given A is a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Just randomly I have taken it. So you don't have to do it. The same type of question we have done it earlier. So if A is this, find the value of f of A. So how you will find the value of f of A? You will first find a cube. How you will find a cube? You will find a square into A. You know how to find a square.
A multiplied by A, you know how to multiply two matrices of order 3 into 3. Clear? If this is a matrix of 3 into 3, so A into A will be again a matrix of 3 into 3. You know how to multiply that, then you will get A square. Then again multiply A square with A. You know what is the value of A? You have got the value of A square after multiplying A with A. So you can get the value of A cube by multiplying A square with A. Now next what you have to do, you have to multiply minus 3 with A square, or you multiply 3 with A square. Nothing, no problem with that. So if you multiply 3 with A square you have already calculated here. So if you multiply 3 with A square, what you are going to get? The value of 3A square, then minus 4I. So if you multiply 4 with identity matrix, what is your identity matrix? When we are talking about any polynomial addition or subtraction in matrices, we are talking about what we have studied, that in addition and subtraction of matrices is possible only if all the matrices are of the same order. So if I'm writing I, that means I is an identity matrix of order 3 by 3. ठीक है ना? I जो identity matrix होगी वो कैसी होगी? 3 by 3 order की. क्या हो जाएगी I? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So you will calculate the value and then get the result. Clear? So that this is, I'm talking about matrix polynomial. That is what a matrix polynomial. If you don't remember, just see this question. Just see this question. We have done it. Just see, find, what is it? Just see, find A cube minus 23A minus 40A. This we have done in the last class. Those who have not seen, please see the video. So what we have done, we have got the value of A. It is given if A is equal to this. So same way you can calculate the value of A square by multiplying A with A. Then multiplying A square with A, you will get the value of A cube. Same way you will get the value of 23 times A. You know, so 23 times A means 23 will be multiplied by each and every element of A. Then minus 40I means what? 40 times I you will calculate. This is your first step. You will write step 1, step 2, and then step 3 you will find 40I. 40I will be what? 40 times identity matrix of the same order, 3 by 3. Clear? Now after this, what you are going to do? After doing all these 3 steps, fourth step will be what? Put the value of A cube, 23A and 40I in this equation and find whether it is equal to this 0 matrix or not. When you will calculate everything, what you will get? You will get a 0 matrix. 0 matrix is what? Where 0, again a 3 by 3 matrix only you will get. Clear? This is a 0 matrix where all the elements are 0. Clear? Then come to the next thing. Next is what? Just see. So we have done matrix polynomial. Now next is again an important topic, transpose of a matrix. So what is transpose of a matrix? Just see, transpose means when in a matrix, suppose if we are having a matrix A, if we are having a matrix A given by any matrix 1 2 3 4 5 6. What is the order of the matrix? Just tell me. This is row 1, this is row 2, this is column 1, column 2, column 3. So we are having 2 rows and 3 columns. So the what will be the order? Order will be, I always write order with row into column. So 2 into 3. So this is a 2 into 3 matrices. This you know. Now transpose means what? How we write first transpose? How we represent it? A transpose, or we write it as A. Above this we write T. So either A dash or A T, that means A transpose. Now in transpose, what we do, we change the rows to columns and columns to rows. What we do, we change the rows to columns and columns to rows. Clear? So what we have to do is, this is your A. So your A transpose, wait a minute, A transpose will be equal to what? Your A transpose will be equal to this A transpose will be equal to, we change the rows. This is your row. We will change it to the column 1, 2, 3, and then this again to again column 4, 5, 6. So now the order, this was having rows 2 and columns 3. Now this will change to 3 into 2 because we have changed the rows to columns and the columns to rows. Nothing else you have to do. So transpose of a matrix is basically what? Changing rows to columns and columns to rows. The whole row will change into the first row to first column,
second row to second column. That's it, nothing else. Is that clear, everyone? And we represent it by A dash or A transpose. Clear? Then next is what? Some properties we will study. Properties of a transpose. What are the properties of a transpose? Just see. A transpose whole transpose is equal to A. That means what? Suppose A is a matrix of 1, 2, 3, 4. This is a matrix. So what will be A transpose? A transpose is equal to what? This row will change to column. 1, 2 will change to this column. 3, 4 will change to again a column. Clear? Yeah. Now what we are saying, A transpose whole transpose. A transpose whole transpose. Again, what we will do? We'll change this A transpose from rows to columns. What it will be? This row 1, 3 will change to column. This 2, 4 will again change to column. Now just see, this A transpose is equal to what? A or not? This is equal to A. Can you see this? 1, 2, 3, 4. So A transpose whole transpose is equal to A. Then A plus B whole transpose is equal to, you can take any matrices of any order and you can check them out. Clear? First I have told you, second you can do it by yourself. A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. Clear? Then this one is important. AB transpose is equal to B transpose A transpose. So when you are multiplying two matrices AB and then you are finding the transpose of it, then what will be the order of the matrices? It will be B transpose into A transpose. Clear? This you have to keep in mind. Clear? You can practice it. I told you to do a lot of multiplication. So this is again a question given by me. You just try. A is a matrix. Let it be 1, 2, 3, 4. Plus, but keep this thing in mind. A and B should be, if multiplication should be possible, you take the matrices of the order so that multiplication is possible. Clear? Let A is equal to this 1, 2, 3, 4 and take B as 1, 3, 2, 1. Yeah. A is this 1, 1, 2, 3, 4 and 1, 3, 2, 1. Clear? All the elements are same. Just see only the fourth element is different. It hardly matters. They are not equal matrices because one element is still different. Now you multiply AB. Clear? And then find the transpose of AB. Clear? This is your homework. Find the transpose of AB. You will get AB transpose. Now you find separately what is B. B is this. So B transpose will be equal to, what will be B transpose? B transpose will be equal to this 1, 3, 2, 1. Same way A transpose will be equal to what? A transpose will be equal to, again this row will change to column 1, 3, 2, 4. Now you find B transpose A transpose. You will find that this LHS is always equal to the RHS. Clear? Then next is K A transpose is equal to, K is what? K is a constant. K is what? A constant. So K A whole transpose is equal to K times A transpose. Very simple, because K is a constant. K can take any value. It can be real, complex, any value it can take. So K can be any value. So K का transpose नहीं लेंगे हम, क्योंकि K क्या है? जैसे अगर 2 times A whole transpose, तो हम क्या ले लेंगे? 2 times A transpose. Clear? Then next is A to the power. This is again important. Sometimes in multiple choice question, this type of question comes. A to the power of n. A to the power of n. These properties will be very useful. So keep these things in mind. Is equal to A transpose times n. इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? We have learned the laws of exponents. 2 to the power 2, 3 times 2 is can be written as 2 to the power of 2 times 3. It is one and the same thing. ये क्या है? 2 to the power of 6. ये क्या है? This is also 2 to the power of 6. So either you write this way or that way, one and the same thing. So अगर आप पहले a to the power of n निकालते हैं, like a square है, a square का ट्रांसपोज निकालो, या पहले a ट्रांसपोज निकालो फिर उसका स्क्वायर करो. It is one and the same thing. Clear? Then again ABC transpose will be, just see the order. आपने देखा था AB transpose is equal to B transpose A transpose. Now if you are having multiplication of 3 matrices and the transpose of it is there, then the order will totally reverse. C transpose, B transpose, A transpose. These are some important results that you should keep in mind. Then comes
The next thing, that is your one more type of two types of matrices you're having, symmetric and skew symmetric matrices. These all things which we are studying, they are very important to find the inverse of a matrix when you will study it in the next chapter. Clear? So please remember all these things. What is transpose? Don't forget what is transpose, because transpose is a very simple thing. Only rows are changing to column and the columns are changing to rows, nothing else. Same way, just see the symmetric and the skew symmetric matrix. What is it? Just see. In symmetric matrix, what they're saying, a symmetric matrix or a skew symmetric matrix. For that, first of all, the thing is what, they both should be a square matrix. दोनों कैसी होनी चाहिए? Square matrix होगी, तभी हम बात करेंगे symmetric और skew symmetric की. Otherwise not. Symmetric by the name itself, symmetry होनी चाहिए, ठीक है ना? तो square matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A. तो जब A transpose और A की वैल्यू सेम आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक symmetric matrix है. क्लियर? कोई भी अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब लेते हैं? जब ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाए? ए के बराबर आ जाए, ठीक है? तो अगर आप देखें, वी कैन टेक एन एग्जांपल. सबसे बड़ा एग्जांपल तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. क्लियर? सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन ले सकते हैं. जैसे अपन ने लिया ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब अगर मैं ये ए है, सपोज दिस इज इक्वल टू ए, सो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाली फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 0 0, सेकेंड रो अगेन कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 1 0, थर्ड रो अगेन कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 0 1. ठीक है? तो अब आप देख रहे हैं क्या बनी, ये अगेन ए के बराबर है. ऐसे बहुत सारी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिनमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर आए. So whenever you are having A transpose equal to A, then we call it as a symmetric matrix. Same way, when you have A transpose is equal to minus A, and the value of A transpose is equal to minus A, then we say it is a skew symmetric matrix. तो जब A transpose minus A के बराबर है तो ये क्या हो जाता है? एक skew symmetric matrix होती है. और अगर A ट्रांसपोज A के बराबर होता है तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. और A ट्रांसपोज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. क्लियर? Is that clear? Symmetric and skew symmetric. Now come to the properties of. Properties are also important. We just read it out once. Yeah. Just see. If A is a square matrix, अगर आपका A एक स्क्वायर मैट्रिक है तो A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक. अगर A सिमेट्रिक है, A ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहे हैं, अगर A एक सिमेट्रिक नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है. इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक, ऑलवेज. क्लियर? जैसे आप एग्जांपल ले लो, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपन ने ले ली. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? 2 3 4 5. ठीक है? ये एक मैट्रिक्स ले ली, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A transpose will be equal to what? Just see. A transpose will be equal to 2 3. ये रो कॉलम में चेंज हो गया, ये वाला रो भी कॉलम में चेंज हो गया 4 5. नाउ A प्लस A ट्रांसपोज, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, A प्लस A ट्रांसपोज, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? कैसे ऐड करते हैं? रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स 2 प्लस 2 4 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे ना. फर्स्ट एलिमेंट से 2 2 से 3 4 से 3 प्लस 4 7 4 प्लस 3 7 5 plus 5, wait a minute, 2 plus 2 4 3 plus 4 7, 5 plus 5 plus 5 10. ये आपके एलिमेंट्स हो गए. अब ये आपका देखो, ये क्या है? एक सिमेट्रिक है या नहीं है? देखो, अगर मैं रोज को कॉलम में चेंज कर दूं, ये सपोज करो A प्लस A ट्रांसपोज किसके बराबर आ गए? अपना एक B मैट्रिक्स के बराबर आ गया. ये मैट्रिक्स आपकी किसके बराबर हो गई? B. A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B मैट्रिक्स. नाउ व्हाट विल बी B ट्रांसपोज? B ट्रांसपोज, चेंज द रोज टू कॉलम. रो वाला कॉलम में चेंज हो गया 4 7, और ये चेंज हो गया अगेन दूसरे कॉलम में 7 10. देख लो, 4 7 7 10, इट इज वन एंड द सेम थिंग. सो B एंड B ट्रांसपोज, तो क्या है? B किसके बराबर आ गई? B ट्रांसपोज. तो मतलब क्या है? A प्लस A ट्रांसपोज इज अ symmetric matrix. Any matrix you can take, it should be what we are talking about, square. We are not talking about any matrix. Clear? A should be a square matrix.
then we will have A plus A transpose as a symmetric matrix. Same way, you can try this out, that A minus A transpose is always a skew symmetric matrix if A is a square matrix. अगर A एक square matrix है तो A minus A transpose क्या होगा? Skew symmetric matrix होगा. Clear? Then come to the next thing, that is A, if A and B are two matrix और टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी या तो दोनों ही सिमेट्रिक है या दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑब्वियसली ऑफ द सेम ऑर्डर, then a plus b is also symmetric or skew symmetric. The same thing they have said. जैसे अगर a सिमेट्रिक है तो a plus a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, a minus a ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है. सेम वे अगर a और b दोनों क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. मतलब सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया? a is equal to a ट्रांसपोज, b is equal to b ट्रांसपोज. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? ऑफ सेम ऑर्डर देन a plus b is also symmetric. तो a plus b क्या हो जाएगा? हमने अभी पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, a प्लस बी क्या हो जाएगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. तो ये तो वैसे ही बराबर होगा ना, क्योंकि देखो a किसके बराबर है? a ट्रांसपोज के. b किसके बराबर है? b ट्रांसपोज के. क्लियर है? सेम वे अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा? a और b दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक होंगे तो a इज इक्वल टू माइनस a ट्रांसपोज, b हो जाएगा माइनस b ट्रांसपोज के. तो a प्लस b क्या हो जाएगा? माइनस a ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज. तो माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक. ए प्लस बी को आप ले लो एक मैट्रिक्स सी, तो क्या हो गया? सी इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज. क्लियर? नेक्स्ट इज if A is a symmetric matrix, then K is any scalar value, K is any value, then is also symmetric or skew symmetric accordingly. तो अगर A symmetric है तो K times A भी symmetric होगा, या K times A अगर skew symmetric है तो K times A will be again a skew symmetric matrix. Clear? Then come to the next one. They are saying if A and B are symmetric matrix of the same order, A and B are symmetric matrix of the same order, then the product AB is symmetric if BA is equal to A. Clear? तो ये points आप याद रख लीजिए, ये चीजें करके भी देख सकते हैं आप, है ना? With any example you can take, like I have taken example in 2-3 things. Just see A and B are symmetric. अगर A और B दोनों symmetric matrix हैं, that means A is equal to A transpose, B is equal to B transpose of the same order, then the product AB is symmetric. तो ए बी क्या होगा? सिमेट्रिक अगर बी ए इज इक्वल टू ए बी. अगर ए बी सिमेट्रिक कब होगा? जब बी ए बी के बराबर होगा. जनरली बी ए बी के बराबर नहीं होता, हमने पढ़ा था. तो ये प्रोडक्ट ध्यान रखना है हमें, ये पॉइंट्स को. क्लियर? नेक्स्ट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हर स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये आपकी थ्योरम भी है, इसको अपन प्रूव करेंगे अभी, कि every square matrix can be expressed uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो कोई भी एक symmetric matrix है तो उसको हम sum of symmetric and skew symmetric matrix के terms में लिख सकते हैं. तो अगर एक square matrix है तो हम लिख सकते हैं A is equal to some value symmetric plus some value skew symmetric. Clear? This we will do later on, है ना? अभी है आपका इसके नीचे properties के बाद. अब ये नेक्स्ट बोल रहा है आपसे, द मैट्रिक्स B dash AB सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. ये मैं आपको करवा देती हूँ एक बार. जस्ट सी B dash AB इज सिमेट्रिक. हम सिमेट्रिक ले लेते हैं, अभी आप स्क्यू सिमेट्रिक को हटा दो. इज सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक. अभी हमने ले लिया अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक. अगर A सिमेट्रिक है तो हमारा क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी डैश ए बी इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बी. ए किसके बराबर है? ए ट्रांसपोज के बराबर, तो हम लिख सकते हैं. अब हमें ये भी पता है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना? ये हमें पता है ना, ये पता है ना हमें. बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए बी होल ट्रांसपोज. तो हम लिख सकते हैं ए बी होल ट्रांसपोज बी. अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट. जस्ट सी द प्रॉपर्टीज, अगर भूल गए हैं आप तो. ए बी होल ट्रांसपोज
देखो इधर ए बी होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अगर अपना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है तो किसके बराबर है, ए बी होल ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं, है ना। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए बी होल ट्रांसपोज के बराबर है ना। और आप ये देखो आपका ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ आप। तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, ये अपना था बी डैश ए बी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक इफ ए, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक है या नहीं है, देखो इधर, है ना। आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, बी डैश ए बी सिमेट्रिक। बी डैश ए बी सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आप देख लो बी, एक मिनट मैं इरेज कर देती हूँ बाकी चीजें ताकि आपको क्लियर हो। जस्ट सी बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने पढ़ा अभी कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक, बी डैश ए बी सिमेट्रिक मीन्स, जस्ट सी इसको सिमेट्रिक करने का मतलब क्या है। पहले तो आप देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर ए डैश इज इक्वल टू ए देन सिमेट्रिक। तो बी डैश ए बी अगर सिमेट्रिक है तो हम क्या बोल सकते हैं, बी डैश ए बी होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू व्हाट। हमने क्या पढ़ा था, अगर तीन मैट्रिसेस है उनका ट्रांसपोज है तो क्या ऑर्डर आ जाता है, उल्टा ऑर्डर आ जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और क्या आ गया बी। इसका क्या होगा, ए बी सी, इसको मान लो ए बी सी है तो क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी। अब आप देखो ये क्या आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी के बराबर, अपन को ये स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है, आ रहा है ना, डायरेक्टली हो रहा है। ठीक, देन नेक्स्ट इज this you remember, this will be point 8 and 9 will be very useful when you are doing multiple choice questions when in competitive। generally ये इतना difficult type of question अपना CBSE में नहीं आता है, फिर भी if you want you can remember all positive integral powers of a symmetric matrix are symmetric। तो अगर आपका एक symmetric matrix है A is equal to A transpose है, ये condition है आपके पास, है ना, तो इसके सारे positive integral powers भी symmetric होंगे। ठीक है, ए टू द पावर ऑफ कोई भी पॉजिटिव 2 आया, कुछ भी आया तो वो सब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। सेम वे ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। देन नेक्स्ट इज if A and B are symmetric matrix of the same order, then just see if A and B are symmetric matrix of the same order, then AB minus BA is skew symmetric and AB plus BA is symmetric। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, दे विल बी वेरी यूजफुल एवरीवेयर। सो इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं एंड दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, टू कंडीशंस आर देयर, दे आर सिमेट्रिक एंड आर ऑफ सेम ऑर्डर, then AB minus BA, AB and minus the difference of the product means just we have reversed the order, AB minus BA is a skew symmetric matrix and AB plus BA is a symmetric। तो याद रखना है जब A और B symmetric matrix हैं तो AB plus BA क्या होगी, symmetric, और AB इनका एडिशन symmetric होगा and subtraction क्या होगा, skew symmetric होगा। yeah. For example, for a square matrix A into A transpose are all symmetric matrix। clear। Then take some examples, then things will be more clear to you। I'll take some examples, just see। First we will take a theorem, this is from your book only। For any square matrix, for any square matrix A with real number entries A plus A transpose is symmetric। अभी हमने पढ़ा था ये, है ना, प्रॉपर्टीज में। प्रूफ कैसे करेंगे, लेट B is equal to A plus A transpose, है ना, B क्या है, A plus A transpose, तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A plus A होल ट्रांसपोज। अगर अपना B जो है B is equal to हमने लिया है A plus A ट्रांसपोज, जस्ट सी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, A is a square matrix with real entries and A plus A transpose is symmetric matrix। हमें बोला गया है कि A plus A transpose क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A plus A transpose सिमेट्रिक है तो दैट मीन्स व्हाट, अगर B A है तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A plus A transpose whole transpose, that can be written as A transpose plus A transpose whole transpose will be equal to A
है ना। तो ये A ट्रांसपोज प्लस A के बराबर हो गया। तो अपना क्या आ गया, ये A ट्रांसपोज प्लस A B के बराबर है, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो हमने प्रूव कर दिया फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real entries A plus A transpose is a symmetric matrix, है ना। A plus A transpose क्या सिमेट्रिक है ना, क्योंकि B ट्रांसपोज B के बराबर आ गया। A plus A ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, A ट्रांसपोज प्लस A के। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम वे अब अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, देखो इधर B इज इक्वल टू A plus A ट्रांसपोज गिवन है, हमने मान लिया ना ये A plus A ट्रांसपोज क्या है, ये तो चलो प्रूव हो गया, सॉरी ये तो प्रूव हो गया अपना। वी आर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट A minus A ट्रांसपोज नाउ। अगर A minus A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमने मान लिया लेट C इज इक्वल टू A minus A ट्रांसपोज। ठीक है, तो C ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A minus A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू व्हाट, अब ट्रांसपोज को अलग अलग ले लो, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट A, तो A ट्रांसपोज माइनस A विच इज इक्वल टू व्हाट माइनस टाइम्स, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू व्हाट माइनस C। तो हमने क्या देखा, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट माइनस C विच इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब हम C को A माइनस A ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो A minus A transpose is what, a skew symmetric matrix, whereas A plus A transpose is a symmetric matrix when A is a square matrix। तो अगर A एक square matrix है तो A plus A transpose हमेशा क्या आएगा, symmetric, और A minus A transpose क्या आएगा, skew symmetric matrix। Clear? If anything is not clear, you can ask me anytime. Clear? Then next is theorem number 2. This is very important, please keep this thing in mind also, that what they are saying, just see, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, अगर A आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अभी अपन ने पढ़ा था लास्ट थ्योरम में कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, ये एक सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर? तो हम A को एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट। A इज इक्वल टू, है ना, हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज। अब आप देखो प्लस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज कैंसिल आउट, हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A कितना हो गया, हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A इज रिमेनिंग विच इज इक्वल टू व्हाट, A। क्लियर? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ सिमेट्रिक A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के फॉर्म में। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, we will do those questions। clear? Then next is, now come to the questions, just see what they are saying। prove that the sum of two skew symmetric matrix is a skew symmetric matrix। जो भी अपन ने अभी प्रॉपर्टीज की उस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस है ना। तो बोल रहा है कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका सम भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। तो क्या, एंड सेकेंड पार्ट बाद में करते हैं, पहले आप देख लेते मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स अपन को गिवन है ये 1 3 5, क्या है मैट्रिक्स, विजिबल है 1 3 5 माइनस 6 8 3 माइनस 4 6 5, ये आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है ना। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, अच्छा ये सेकंड पार्ट के लिए, अभी तो हमें सिर्फ प्रूफ करना है, वेट अ मिनट, है ना, अभी तो अपन को सिर्फ प्रूफ करना है। तो हमने माना लेट A एंड B आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A और B क्या है, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर होगा, B ट्रांसपोज माइनस B के बराबर होगा, है ना। अगर A और B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, हमने पढ़ी थी स्क्यू सिमेट्रिक्स की डेफिनेशन, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। क्लियर? यही लिखा हुआ है इधर। तो A प्लस B होल ट्रांसपोज,
क्या बोल रहे हैं हम, a प्लस बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। हमने अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, है ना। तो a ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a, b ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस b। तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, a प्लस b। तो आप देखो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, ये क्या है, a प्लस बी किस तरह की मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर a और b स्क्यू सिमेट्रिक है तो a प्लस बी भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला है उन्होंने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी हमने जो सेकेंड पढ़ी थी ना हमने कि दिस मैट्रिक्स यू हैव टू रिप्रेजेंट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिवन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, तो हमने अभी क्या पढ़ी थी, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। हमें पता है A प्लस, अब इससे पहले वाले ही अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना किस फॉर्म में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में। क्लियर, सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में, वही करना है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी मैट्रिक्स अपन ने मान ली A है, तो A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, फर्स्ट रो changes to column, second row second column, third row third column। ठीक है, सेम वे अब हम क्या लिखेंगे, हम कैसे उसको प्रूफ करेंगे, ये देखिए आप, ये देखो आप, ये वाला सेकंड पार्ट है आपका। क्या बोला है, P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2। P इज इक्वल टू A प्लस, हमने क्या लिखा था, P क्या है, हमें बोला गया है कि A को रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ, हमने ले लिया P प्लस Q, P वेयर P इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने लास्ट जो थ्योरम पढ़ी थी, हमने उसमें क्या पढ़ा था, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, दैट इज व्हाट, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम P का नाम दे सकते हैं। और ये क्या लिखा था, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो कंफ्यूज नहीं होना कि पी क्यू क्यों लिया है। अब आप देख लो, A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2, ये क्या वैल्यू हो गई, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सॉरी ये जो आपकी है, ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। क्लियर, और ये जो आपकी हुई, ये क्या हुई, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको प्रूव भी तो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, हमने तो यहाँ लिख दिया ये जो आपने लिया था थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो P इज इक्वल टू, हमने माना है P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो P का वैल्यू क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2। A की वैल्यू हमें पता है, A ट्रांसपोज की पता है, बाय 2 हम कर ही सकते हैं, 1/2 बाहर लिख दो आप। ठीक है, तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस माइनस 6 -3, 5 प्लस -4 1, है ना, -6 और 3 कितना हो जाएगा, -3, 8 प्लस 8 16, 3 प्लस 6 कितना आया, 9, देन -4 और 5 कितना आया, +1, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 5 10, आ गई है आपकी। अब आप देखो, क्लियर, अब मैं वापस क्लियर कर देती हूँ ड्रॉइंग्स। ये देखो, ये आपकी P की वैल्यू है। P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हाफ तो मैंने आपको अपन ने पढ़ा था कि K टाइम्स A इज इक्वल टू K टाइम्स A, मतलब अगर A ट्रांसपोज के बराबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। K टाइम्स होल टाइम्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू K टाइम्स A ट्रांसपोज। तो ये अपना हाफ तो एज इट इज बाहर ले लिया अपन ने। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो विल चेंज टू कॉलम। ठीक है, 2 -3 1 का आ गया, 2 -3 ये कॉलम में चेंज हो गया। सेकेंड रो, इसमें कॉलम में -3 16 9, थर्ड रो 1 9 10 1 9 10। क्लियर है, तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो हमने प्रूव भी कर दिया है कि P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, मतलब क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q की वैल्यू हमने क्या ली, A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, लास्ट थ्योरम। तो Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, अगेन हम A माइनस A निकाल लेते हैं, विल क्लियर ऑल। A माइनस A कितना है, 1 -1 0, 3 -6 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ -6, तो क्या आ जाएगा, 9 आ गया। ठीक,
5 माइनस ऑफ -4 अगेन 9 आ गया, -6 -3 -9, 8 -8 0, 3 -6 -3, -4 -5 -9, 6 -3 3, and then 5 -5 0 आ गया ये। दिस इज योर वैल्यू ऑफ Q। ये आपकी Q की वैल्यू आ गई, जो कि हमने बोला है कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम प्रूव भी करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे प्रूव करेंगे? Q शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q ट्रांसपोज, और आप Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। अब अपन ने ये Q की वैल्यू है तो हम Q ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज मतलब ये रो चेंज हो गया कॉलम में, ये आ गया 099, ये वाला अगेन सेकेंड रो चेंजेस टू कॉलम ट्रांसपोज में, थर्ड रो चेंज टू कॉलम। नाउ अगर मैं माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूं, 0, देखो इधर 0 -9 माइनस, तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या आ गया 099, यहाँ कॉमन ले लिया माइनस साइन तो क्या आएगा, तीनों ही माइनस में आएंगे तो -0 तो वही रहेगा, तो -9 0 -3, ये क्या आ गया -9, यहाँ से कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, ये देखो इधर से थर्ड वाले से, तो क्या आया -9 3 0। अब आप देखो ये किसके बराबर है, -12, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू Q के बराबर ही तो है, 099 -903। क्लियर है ना? इज दैट क्लियर? हाफ आप हाफ की तो वैल्यू वही रहनी है। क्लियर? इज दैट क्लियर दिस क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट, तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और P प्लस क्यू को फिर हमने वापस क्या दिखा दिया, हमने P की वैल्यू निकाली, हमने P की वैल्यू जो निकाली थी वो रखी, Q की वैल्यू निकाली, वो भी हमने दिखा दिया कि A के बराबर है, क्योंकि P प्लस क्यू किसके बराबर है, P किसके बराबर था, करने की जरूरत नहीं है आपको, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर था। और Q किसके बराबर था, ये P की वैल्यू थी, और Q किसके बराबर था, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो P प्लस क्यू क्या आएगा, P प्लस क्यू की वैल्यू A के बराबर ही आएगी। क्लियर? ये तो हमने अभी प्रूव भी किया था आगे। तो A can be written as the sum of symmetric as well as the sum of skew symmetric matrix. Clear? Then comes the next one. Just see this question. They have given A as this. A is equal to this 1, 5 minus 1, 2. Sorry. A dash is, A dash क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपका अगर A ये वैल्यू है तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, ये हमने क्या किया, सिर्फ रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया, है ना। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये आपका ये A ट्रांसपोज नहीं है, ये है A ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज नहीं है, क्लियर मत करना, क्योंकि यहाँ ये इन्होंने ट्रांसपोज लगा रखा है, दिख नहीं रहा है आपको, है ना। तो A इज इक्वल टू दिस, देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 5 minus 1 2 ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो गई, ये फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो कॉलम में चेंज हो गई। A प्लस A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज क्या हुआ, A प्लस A ट्रांसपोज, दोनों को ऐड किया हमने, क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, 5 - 1 4 -1 5 -1 + 5 4 2 + 2 4 आ गई आपकी वैल्यू। अब आप देखो, ये तो आपकी वैल्यू हो गई A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। P की वैल्यू क्या है, जो कि P क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। हम P और Q के फॉर्म में, A को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, A इज इक्वल टू P प्लस Q, वेयर P इज व्हाट, सिमेट्रिक, एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, where the value of P is equal to half of A plus A ट्रांसपोज, ये P की वैल्यू है, और Q की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। मैंने ये 4 से 5 बार आपको बता दिया है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स can be represented in the form of sum of symmetric as well as sum of skew symmetric, वही बता रखा है इधर, है ना। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू होती है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो अभी हमने A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू ये निकाली, अभी मैंने आपको बताया कैसे।
P इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो हाफ कर दो। तो हाफ करने का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट में से हाफ कर देंगे हम। सो 2/2 कितना हो गया 1, 4/2 कितना हो गया 2, 4/2 ये 2 है ना बाहर, 4/2 2, 4/2 2। तो ये आपकी आ गई P की वैल्यू, ये क्या आ गई आपकी P की वैल्यू। ठीक, ये आपकी P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप देख लो P डैश क्या हो जाएगा, P डैश क्या हो जाएगा, ये रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये वाली रो को भी कॉलम में चेंज कर दो, क्या आ गया, इज इक्वल टू P के बराबर ही तो है ना। तो हमने प्रूव कर दिया P एक सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन हमने अब क्या ले लिया, A माइनस A ट्रांसपोज, जो हमें Q निकालना है। A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू वैसे ही निकाली, 1 माइनस 1 0, ठीक है ना, यहीं से ले लो। 5 माइनस 1, 5 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, Q क्या है, जस्ट सी, Q है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। Q क्या है, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक, तो हाफ ऑफ 0 6 माइनस 6 0, तो आप हाफ वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 0/2 0, 6/2 3, माइनस 6/2 माइनस 3, 0/2 0। ठीक है, तो Q डैश क्या आया, Q डैश आप इसको, ये वैल्यू आपकी Q की वैल्यू ये है, तो Q डैश की वैल्यू क्या होगी, ये रो कॉलम में चेंज हो गई, ये सेकेंड रो भी कॉलम में चेंज हो गई। ठीक है ना, फर्स्ट रो देखो इधर, फर्स्ट रो कॉलम 0 3 यहाँ पे आ गया, देखो क्लियर नहीं है तो एक बार और देख लो। Q डैश, Q अगर Q की वैल्यू ये है तो Q डैश क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। यहाँ ये ट्रांसपोज लगा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला है आपका फर्स्ट रो कॉलम में, सेकेंड रो कॉलम में। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, अब आपने वापस क्लियर कर दो इसको। अब आप देखो इधर, ये वैल्यू और ये वैल्यू Q और Q डैश की वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है, ओनली माइनस का। तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 0 3 माइनस 3 0। क्लियर, is that clear? So this is equal to minus Q, so Q is equal to, this is a skew symmetric matrix. So we have taken two examples. Clear, now you can write P plus QS, this plus this. Now this is a symmetric and this is what, a skew symmetric. ये एक symmetric matrix है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपसे पूछा जाएगा अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो what will be the symmetric, how you can write it in the form of sum of symmetric and skew symmetric, that you can do. Then they can ask what will be the value of the symmetric matrix and what will be the value of skew symmetric, then this is the value of symmetric and this is the value of skew symmetric matrix. Clear? Now I think so it's time now. We will discuss it in the next class, next topic. Okay. So by that time, please do exercise 3.3. Some questions we have done, and please do some more questions of this exercise 3.3. Okay. Thank you, class.